Okay, so hello everyone. Let's wait for everyone to come online. I'm waiting for everybody to join. Okay, hi Kajol Talreja. Anyone else? Yash, hi. Prabhat Sharma, hi. Piyu, Dheeraj, hi. Okay, so everybody who's joining over here, a warm welcome to all the people on behalf of Acme Creations. You may be thinking that what I'm doing over here is my name is Anchor Dheeraj, and basically I'm there to welcome the DJ, one of the finest DJ. He has been, in Bollywood we have got a person who's called as SRK, the Badshah of Love. Okay, he's called SRK, Shah Rukh Khan. Okay, but in DJ industry we have got a guy, we have got a DJ who is called the Love Guru, the king of love remixes. It's none other than DJ Lemon, who's going to join us in a short while. So, ladies and gentlemen, boys and girls, and everyone who are joining over here, big hi to everyone out here. Okay, first of all, I would like to thank Acme Creations for giving me this chance to interview DJ Lemon. It's really awesome, and I've been associated with with Acme Creations for quite a long time now. It's like a relationship for around 5 to 6 years, I guess. Okay, so I hope you guys are watching. I'm still waiting for some more people to join over here right now. Okay, and then I'll be sending a request to DJ Lemon. Oh, DJ Lemon is online. So let's send a request to him. There we go. Ladies and gentlemen, boys and girls, and everyone out here, we have DJ Lemon out here. Guys, come on, make some noise. Yes, we cannot make a noise in online, but we can have some claps on the comment sections out there, guys. People, come on. All the people are watching out here. Can we have some claps, some smileys out there? Heart smileys and everything out there. Come on, guys. Yes, very good. There we go. Wow. Okay, first of all, a warm welcome to DJ Lemon, sir. I've been a big fan of yours. You may be not knowing me, but yes, I'm a big fan of yours. We used to do music production and many things with Sagar. I was a partner with DJ Sagar. But Awesome. it was, quite a long journey till now. And one thing that I really want to ask you, this name, DJ Lemon, ये कहाँ से, मतलब कैसे ये आया? आपका असली नाम जो है वो अनिल है, राइट? अब तो ये नाम जो है, आपको कमेंट सेक्शन में भी बहुत लोग टाइप कर देंगे। मैंने सारे इंटरव्यूज में बताया ये। तो ये नाम दिया गया था मुझे मेरे पिताजी से। ही यूज्ड टू कॉल मी लीमा। तो सिंधी में लीमा बोलते हैं लेमन को। अच्छा, तो बस मैंने वो लीमा से लेमन कर दिया 2006 में आई थिंक, और तब से चल रहा है, बस बढ़िया चल रहा है। ओके, जो भी ज्वाइन कर उनको मैं बताना चाहूंगा, डीजे लेमन सर का लगभग 9 लव रिडिफाइंड एल्बम्स हैं। एम आई राइट सर? 10th आ रहा है। यस, 10th आ रहा है। यस, सो इसमें एक पार्ट है। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे केविन। मैंने विश तो किया है, बट आई थिंक ही इज आल्सो वाचिंग अस, सो लेट्स जस्ट विश हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। A very happy birthday to DJ Kevin. Thank you for joining, buddy. And so coming back to the question, sir, in your album, there's one thing that is my personal favorite. What should I say? There's a big story behind that. It's the Love Redefined theme song. Yeah. Every time you have it in your, album. So tell me something, nobody has ever tried this thing in their album. You are the first one and you're the only one who had done this. So tell me something, how did this idea came up to basically? हाँ, ये किसी ने नहीं पूछा है क्वेश्चन। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो ये शुरू हुआ आई थिंक साहिल जोशी और मेरी सोच थी इसमें। एंड साहिल यूज्ड टू सो डीजे साहिल जोशी, ही इज अ वेरी गुड प्रोड्यूसर फ्रॉम बॉम्बे। तो
मैंने कुछ 6-7 गाने बनाए थे एल्बम के लिए, फर्स्ट एल्बम के ओके। लिए। तो मुझे लगा कि थोड़ा स्निपेट होना चाहिए कि इस गाने का थोड़ा, उस गाने का थोड़ा 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 करके 3 मिनट का एक इंट्रो होना चाहिए पहला गाना करके। तो बिकॉज इट वॉज नॉट, तभी ना वो मैशअप्स कैसे करना है, की कैसे चेंज करना है गाने का पता नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि इंस्ट्रूमेंटल बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंटल वी कैन चेंज कीज। राइट। तो आई थिंक मुझे जो गाने याद आ रहे हैं, आतिफ असलम का गाना था, फिर तू ही हकीकत था, मतलब वो एरा के गाने थे सारे। तो राइट उसका राइट। इंस्ट्रूमेंटल बना के हमने फर्स्ट सॉन्ग करके डाल दिया था, एंड दैट्स हाउ स्टार्टेड इन 2004 आई थिंक। अच्छा। तो वो थीम की तो शुरुआत थी, थीम ऑफ लव आपको रिडिफाइंड। इसी बात पे मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। यही का सीन है। वी आर फोर फ्रेंड्स। ओके। वी टू पार्टी, वी टू जैम ओवर हियर। उसमें एक सीन होने का हमेशा कि आपका लव रीडिफाइंड एपिसोड 6 और एपिसोड 7, these are my personal favorites actually. We used to play this song, and see, at that point of time, I think around 5-6 years back, uh, we were in love. Okay, so we used to literally get emotional. That episode 7, I still remember that song. It used to start with the Imran Hashmi dialogue कि कानों में आवाज आती है, something like that, and we used to be totally, there used to be tears in our eyes. अरे Now we got मेरे married दोस्त, actually to the same person, but मेरे that was a दोस्त moment मुझे रात actually. को, मैंने इसीलिए मोबाइल बंद करना स्टार्ट कर दिया है। तो रात को ना अच्छा। ये लोग जब बैठते हैं, जब हाँ मतलब एक टाइम आ जाता है ना कि ये लेमन को मैं जानता हूँ, लगा के हाँ। दिखाऊं फोन, तो वो जब राइट। गाना लगा के जब मुझे कॉल्स आते हैं ना, तो कभी कभी हाँ हाँ अच्छा लगता है, कभी कभी मैं नींद हाँ में हाँ। रहता हूँ भाई। तो मैंने भी अच्छा। आजकल वो बंद कर दिया है, फोन ही बंद रखता हूँ मैं 11 के बाद। देखिए, वैसे तो आप काफी सारे लाइव इंटरव्यूज दे रहे हो और अपनी जर्नी के बारे में आप बात करते रहेंगे, बट मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, ये जो योर इंट्रोडक्शन इनटू डीजे इंडस्ट्री, हाउ वाज इट हैपेंड, लाइक इट वाज लाइक अ पैशन टू यू और इट जस्ट हैपेंड लाइक? पैशन तो था, डीजे तो बनना था कैसे भी हाँ करके, हाँ। और अच्छा डीजे बनना था। ओके। मतलब आज भी मुझे लगता है कि आज भी अगर मैं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ, तो हाँ हाँ। इवेंट के पहले मुझे आज भी एंजाइटी होती है। आज भी लगता ओके। है कि बहुत अच्छा प्रूव करके दिखाना है, कुछ सरप्राइजेस लेके जाता हूँ या एडिट्स बना लेता हूँ, कुछ जाके अलग करना है। अगर मुझे बुलाया है तो याद भी रखना चाहिए कि हाँ लेमन आया था और ये सब करके गया। तो हाँ, सो पहले से ही पैशन तो था। हाँ हाँ। तो आप जब भी कोई सिटीज में जाते हो प्ले करने के लिए, डू यू हैव योर सेट प्लान्ड और इज इट लाइक यू गो टू एवरी सिटी एंड प्लान योर सेट अकॉर्डिंग टू दैट? नहीं नहीं, अभी क्या है ना, ट्रैवल से पता चल गया है कि कौन हाँ से हाँ सिटी में कौन सा म्यूजिक चलता है। बट अर्लियर हाँ जब हाँ ये स्ट्रगलिंग टाइम था ना, मतलब 2009 से लेके 2015-16 तक, हाँ हाँ। तभी के टाइम में ना हर नया सिटी, हर नया कंट्री जब मैं जाता था, तो जानबूझ के आई यूज टू कनेक्ट विद दोज क्लाइंट्स मोर ऑन इंस्टाग्राम, एंड आई यूज टू कनेक्ट विद दैट लोकल डीजे। अभी अगर ओके। मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, तो मुझे डीजे दिशाल बहुत अच्छे से याद है कि ही हेल्प्स मी लाइक अ ब्रदर, कि ये 10 गाने पक्का लोकल रखो और कहीं ना कहीं ओके। इसको मिक्स कर देना। ऐसे ही अच्छा। मेरे हैदराबाद में दोस्त हैं, चेन्नई में दोस्त हैं। तो जाते से ही दोपहर को मैं जब जैसे ही चेक इन करता हूँ, तो डेफिनेटली मैं चेक करता हूँ कि आज की डेट में हैपनिंग लोकल गाने कौन से हैं, वो 4-5 जो चल रहे हैं। ओके। सो इसी बात पे मुझे एक और सवाल याद आता है सर, मतलब इतने सारे रिमिक्सेस है, इतने सारे गाने हैं बॉलीवुड में एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड, किशन जी विच इज पूछ दैट रहे हैं वन? रेगे, रेगे आई विल सेंड यू दोस एडिट्स ब्रो, नो प्रॉब्लम, यू कैन टेक माय लैपटॉप। ओके। So there is, that one song that is really happening, which actually makes everybody, dance on the floor. ऐसा कौन सा गाना है जो हर कोई, मतलब बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी हो, वो डांस करता है वो गाने पे? आज Which is की that डेट में song? कि कभी भी? All round, any decade. आई थिंक काला चश्मा वर्क्स एनी टाइम। काला चश्मा.
मुझे लगता है, पता नहीं अभी लोगों का अलग अलग रहेगा, बट काला चश्मा अच्छा। वर्क्स फॉर मी. एनी टाइम आई switched from 130 to 1056 and I've started with Kala Chashma. It has always worked for me. Okay. So you are a music producer, you are a DJ, you have got your own academy in Pune. Am I right, sir? Yes. Yes, I am. Uh, but which thing came to you first? Was it the music production or the DJ? डीजे ऑफ कोर्स. म्यूजिक प्रोडक्शन तो 2003 में स्टार्ट किया. मेरा एक दोस्त था अच्छा. स्वराज पाटिल, मतलब अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है वो. बट हाँ, हाँ, मिलना थोड़ा कम ज्यादा हो गया बिकॉज अभी लॉकडाउन है, वो बहुत दूर रहता है यहाँ हाँ. से. बट वो फर्स्ट टाइम मेरे पास FL स्टूडियो आई थिंक थर्ड वर्जन लेके आया था. आज FL स्टूडियो 20 चल रहा है, वो मेरे हाँ, पास हाँ. FL स्टूडियो 3 लेके आया था. तो हमने कैसे Okay. करके वो इंस्टॉल किया. आता कुछ नहीं था और यूट्यूब था नहीं, हाँ, हाँ. तो कैसे तैसे इंस्टॉल किया, कैसे तैसे वो बीट बनाना, वो सीक्वेंसर में जाके एक एक. और हमने जब सॉन्ग क्वांटाइज करके वो बीट पे लाया ना, वही बड़ी खुशी थी हाँ. तभी. भाई उस पे अच्छा. एक किक डाल दी और एक स्नेयर डाल दिया, बस. बेसलाइन तो वेसलाइन मतलब बहुत बाद में किया. आपने कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग या कुछ भी ऐसा नहीं किया, आपने खुद से सीखा है. Am I right, sir? 100%. बट हाँ, Okay. मुझे जोएब खान बॉम्बे, मेरा 2000 आई थिंक 8 में मैंने उनको हेल्प मांगी थी. मेरा बूम बूम करके एक प्रोजेक्ट है, नाजिया हसन का सॉन्ग है. Okay. तो मैंने उनको वो प्रोजेक्ट भेजा था और उन्होंने पता नहीं कैसे, बहुत काइंड है वो. उन्होंने प्रोजेक्ट एडिट करके मुझे भेजा कि ये मिस्टेक थी, ऐसा होना चाहिए. वो एक प्रोजेक्ट जो मेरे पास आया था, वो आई थिंक आज तक मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए थैंकफुल हूँ मैं, कि वहां से मेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का जर्नी अलग ही लेवल पे चला गया. ओके. एक और सवाल है आपके लिए सर, और ये एक बहुत ही स्पेशल सवाल है. अगर आप डीजे इंडस्ट्री में, सागर आज कैसे ऑनलाइन है बाबा. बहुत बिजी आदमी है, फोन बंद रखता है, मैसेजेस का रिप्लाई 24 घंटे के बाद. एक्चुअली मैं आपको बताऊं सर, मैं उसके स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ और यहीं पे हम लोग जैम अप सेशन करते थे. वो तो बाजू के रूम में ही है क्या आपके पीछे है? बाजू के रूम में ही है वो. बाजू के रूम में ही है. बुलाओ उसको, कोई बात नहीं, बुलाओ. बुलाता हूँ सर. मैं एक सवाल कंप्लीट करता हूँ सर. इफ नॉट इन डीजे इंडस्ट्री, व्हाट वुड डीजे लेमन वुड हैव बीन डूइंग? अगर आप डीजे इंडस्ट्री में नहीं रहते तो आप क्या करते? एक्टर ट्राई करता. मैं एक्टर बनना तो ट्राई करूंगा. एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एक्टर से आई मीन एक मॉडल पर्सनालिटी आपका है सर. और एक पर्सनल सवाल भी, एक ग्रूमिंग टिप्स के कुछ दे सकते हो आप? जो बियर्ड आपकी है, ये कैसे, मतलब ये तो मैंने खुद बनाई है. पिछली बार मैं बनवाने गया था, उसने थोड़ा सा गलत कर दिया, फिर मैंने ठीक कर दिया. हाँ. आई मीन इट्स ऑसम. यस सर. कैश भाई, हमारे सर कैश सर है. सलाम कैश भाई. काफी लोगों को कमेंट्स आ रहा है सर यहाँ पे. एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत जबरदस्त है सर, बहुत जबरदस्त. दे लव यू सो मच. आई मीन वी कैन सी अ लॉट ऑफ लव ओवर हियर. एंड ऑफ कोर्स यू आर द किंग ऑफ लव रिमिक्सेस. अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई. थैंक यू. सो 2 और सेगमेंट मैंने प्लान किया आपके साथ. ये तो नॉर्मल सवाल थे, एक है रैपिड फायर और एक फन सेगमेंट है. ओके. सो मुझे लगता है मैं रैपिड फायर के साथ शुरू करना चाहूंगा. तो मैं आपको कुछ सवाल करूंगा, कुछ पूछूंगा आपको, 1 वर्ड में या 1 सेंटेंस में आप उसका जवाब दे सकते हैं. आर यू रेडी सर फॉर दैट? ओके. सबसे पहला सवाल, EDM और बॉलीवुड म्यूजिक? बॉलीवुड. Which event you like the most? College, social or nightclub? College. Okay. I mean the aura, the energy that you get is mind blowing in college. Mind blowing. तुम गजल लगा दो, गजल पे भी डांस करते हैं वो लोग. Actually. बहुत अच्छे. Happening city. स्टूडेंट मुझे बहुत पसंद है. Okay. Happening city, Mumbai or Delhi? This is a difficult question for you, I guess. 100% मुंबई. And if I say Mumbai, Delhi, Pune? पुणे. Biggest musical fantasy, or you can call it as a dream, आप कहीं पे प्ले करना चाहते हो या ऐसा कुछ? Any wish or any big musical fantasy? ऐसा कुछ नहीं, जो है बहुत अच्छा है. जो मैंने किया है या जो इधर में मुझे बुलाते हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम.
यही बेस्ट है। बहुत अच्छी जगह पे जाता हूँ मैं। आई एम रियली थैंकफुल मैं यहाँ तक आया हूँ, ये भी ठीक है। ग्रेट सर। ऐसे 5 गाने जो करंटली आपके प्लेलिस्ट में है, 5 गाने रिपीट मोड पे आप कंटिन्यूसली सुन रहे हैं, सुन रहा हूँ कि प्ले करते वक्त। देयर आर 2 प्ले डिफरेंट करते हो, सुनते भी हो, करंटली आपके प्लेलिस्ट में है वो गाने? ओशन कोई भी आइज, 5 गाने। बिली आइलिश का ओशन आइज बहुत सुन रहा हूँ मैं, रिपीट पे सुन रहा हूँ। और जिनको नहीं पता है प्लीज जाके चेक करिए यूट्यूब पे। बिली आइलिश एक बहुत ही यंग टैलेंट है, आर्टिस्ट है यूएस की। एक एल्बम में उसने आई थिंक 7 से 8 गाने उसके बिलबोर्ड चार्ट्स में थे। ओके। वो ओशन आइज तो पक्का सुनना। बैड गाय इज ऑल्सो गुड सॉन्ग। और मुझे विशाल मिश्रा का म्यूजिक बड़ा पसंद है, तो उनका आज भी और मांझा गाना दोनों मुझे बहुत पसंद है। Okay, who's your favorite international Indian and underrated DJ? इंटरनेशनल अंडररेटेड डीजे एक नहीं And बोल सकता Indian. मैं, एक नहीं बोल सकता। आई थिंक डीजे दिशाल फ्रॉम नायरोबी बहुत बहुत अच्छा प्ले करते हैं, बट हाँ उनका थोड़ा सा यहाँ पे आना होता नहीं है, या पता नहीं क्या सीन है। और डीजे हनी जो कि आई थिंक डीजे शैडो जो इंडियन है, मतलब वो तो बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बट आई थिंक हाँ, आई थिंक आई विल स्टिक टू डीजे दिशाल। Okay. And your favorite console, sir? Console player. वही DJM 900 Nexus 2 और 2000 Nexus 2। Okay, and this one question is special actually. Is there any celebrity or a actor or anyone from the music industry or Bollywood whom you would like to collaborate with, a singer or someone? बहुत टैलेंट है, एक क्या है, बहुत टैलेंट है। जुबिन नौटियाल बहुत अच्छे हैं। आई थिंक विशाल मिश्रा इज फैंटास्टिक, मतलब अमेजिंग है वो। तो ये दो तो पक्का मुझे कभी ना कभी अगर चांस मिलेगा तो आई वुड लव टू वर्क विद देम। ग्रेट सर। अब जाते हैं हमारे फन सेगमेंट की तरफ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सर। इसमें कुछ फनी क्वेश्चंस हम लोग आपको पूछने वाले हैं, देखते हैं आप कैसे जवाब देते हैं इसके बारे में। ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सर, 2 things about DJ Lemon that no one knows about. अच्छा, आई थिंक वन इज दैट आई एम अ साइंस स्टूडेंट। किसी को लगता नहीं है कि मैं हूँ, बट मैं हूँ। You're a science student. या Oh. Normally जो आर्ट्स और कॉमर्स वाले वही ये सब डीजे वगैरह ज्यादा रहते हैं। This is, I think you're the first person who is a science student and you have been a DJ or a music producer. या बहुत लोगों को नहीं पता, बट है। वो आजकल मीम चल रहा है ना, तुझे पता नहीं है बट तू है, तो मैं हूँ। हाँ, राइट। और एक सवाल है सर, what is the most craziest thing एक फीमेल फैन या फिर एक मेल फैन ने आपके लिए किया है? टैटू। एक ने तो दोनों हाथों पे करवा दिया नाम। फीमेल मेल? मेल मेल मेल। और ऐसा कभी हुआ सर कि कोई फीमेल ने आपके आप जब प्ले कर रहे हो या प्ले के बाद वो आके आपसे नंबर लेती है एंड ऑल दोस थिंग्स, डिड दैट हैपन एनी टाइम? पूछते हैं ना, बट वो स्मार्टली मैं फिर पंकज का नंबर दे देता हूँ। अच्छा, ओके। ऑन दैट नोट, आई नो यू आर मैरिड, Yes, so I how am. does she react to all these female attention? She doesn't care. She knows it's fine. Hello, Anu. Okay, so भाई, my कल ट्यूसडे सीन नहीं किया। कौन सा सीन? हेलो तुषार। ओके, लास्ट 2 सवाल है, उसके बाद हम लोग काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन इन हो रहे हैं, उनके भी सवाल यहाँ पे लेंगे। तो गाइज जो यहाँ पे ऑनलाइन देख रहे हैं, आप लोग भी अपना सवाल यहाँ पे छोड़ सकते हो। विल ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन टू डीजे लेमन, सो प्लीज राइट नाउ यू कैन स्टार्ट लीविंग योर क्वेश्चंस। टिल देन आई जस्ट फिनिश माय लास्ट 2 क्वेश्चंस गाइज। लास्ट 2 सवाल है सर, इफ यू वोक अप लाइक एनी वन ऑफ द सेलिब्रिटी वन मॉर्निंग, आप क्या करोगे? सबसे पहली बात आप क्या करोगे? द फर्स्ट वन इज सलमान खान। सलमान खान, मैं बीइंग ह्यूमन को थोड़ा और ज्यादा प्रमोट करके थोड़ा लोगों के लिए कुछ ज्यादा कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे हाथ में वो है, मैं कर सकता हूँ। और वर्कआउट भी करूंगा, जो आजकल नहीं कर रहा मैं, मुझे करना चाहिए।
राइट सर। दूसरा सवाल, डेविड गुएटा। डेविड गुएटा, आई थिंक जो वो फंड रेजर 2 बार उन्होंने किया, हाँ तो आई थिंक थर्ड उनको प्लान करना चाहिए, बिकॉज वर्ल्ड में इतना कुछ नेगेटिव चल रहा है, और उनके हाँ अगर एक शो से इतना सारा फंड जनरेट हो सकता है, तो आई थिंक अगर मैं डेविड गोएटा होता तो और एक फंड रेजर प्लान करता ऑन अ लिटिल बिगर स्केल देन व्हाट इट वाज बिफोर। राइट। एंड द लास्ट वन, करण जौहर। करण जौहर, इट शुड बी अ फनी आंसर सर। नहीं फनी आंसर क्या दूं मैं, कंट्रोवर्शियल आंसर नहीं दूंगा, बट सच दूंगा। आई थिंक अगर मैं करण जौहर होता तो कुछ कुछ होता है इसका सीक्वल जरूर प्लान करूंगा मैं। टाइम वेस्ट करने से जो चीजें नहीं बोलनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस पर ध्यान देने से अच्छा है कि मैं हाँ। ध्यान दूंगा मेरा कुछ कुछ होता है 2 निकले। और उसमें आप एक्टर और एक्ट्रेस को किसको लोगे? वहां पे तो आउटसाइडर्स, शाहरुख था। किसको? आउटसाइडर्स को लूंगा। Great, superb. So let's cut that topic and go back to the people who are actually online and sending some questions out here. Let's go and check it out. तो यहाँ पे काफी सारे लोगों ने कमेंट किया है, who's your celebrity crush by Mayu? सेलिब्रिटी क्रश मतलब डीजे के एक्ट्रेस? Yes, just send who's your celebrity crush. So I think you can take it in your style. श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर, ओके। ऑलरेडी किसी ने जवाब दे चुका है यहाँ पे, श्रद्धा कपूर। आप देख रहे हो प्रभात शर्मा। उसको सब पता एक बात है, मतलब लोग जो है काफी अच्छी तरीके से आपको पहचानते हैं। मैंने सवाल किया और उससे पहले जवाब यहाँ पे आ चुका था। किशन क्या बोल रहा है? किशन कौन है ये? somebody saying देशा पटानी also। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यार, बहुत अच्छा लग रहा है लाइव आके, बढ़िया है। कभी मुझे अकेले भी आना चाहिए एक्चुअली। और कोई सवाल? लव मैशअप्स कैश भाई, एक्चुअली ना मैं रुक जाता हूँ जब तक 3-4 अच्छे लव सॉन्ग्स रिलीज नहीं होते। तो एक पता है, एक इंडस्ट्री एक चीज फॉलो करती है कि अगर कोई लव सॉन्ग चल पड़ा ना, तो मुझे ऐसे लगता है, आई माइट बी रॉन्ग, आई डोंट नो, मुझे ऐसे लगता है अगर कोई लव सॉन्ग चल पड़ा तो उसी लाइंस पे या उसी स्केल पे या उसी स्टाइल में या उसी बीपीएम पे 7-8 गाने लाइन से आ जाते हैं अगर कुछ पॉपुलर हो गया तो। ओके, एक और सवाल यहाँ पे आ रहा है, स्पिन मास्टर कैश, वो पूछ रहे कि लेमन हाउ डू यू गेट दिस लवली आइडिया ऑफ लव मैशअप? तो मैं उसी का जवाब दे रहा था अभी कि ये जो लव सॉन्ग्स आते हैं ना एक ही टाइम पे अच्छे, तो मैं उसका वेट करता हूँ, और जब आते हैं तब मैं वो एक साथ जोड़ देता हूँ बस। और पुणे में आपका फेवरेट प्लेस कौन सा है भाई किरण? फेवरेट प्लेस खाने के लिए कि प्ले करने के लिए? सवाल आता है। पुणे का फेवरेट प्लेस? फेवरेट प्लेस तो मेरा घर है, सबसे फेवरेट। ओके, सो काफी लोग यहाँ पे ज्वाइन इन हो रहे हैं गाइस। वेलकम एवरीवन। देयर आर मेनी क्वेश्चंस आउट हियर। लेमन हाउ डू यू, one second, I just went on top. Hold on a second. बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। One good thing and one bad thing about being a DJ. नहीं, लॉकडाउन कुछ लिखा था ना? One second, हाँ, sorry. One good thing and one bad thing happened during lockdown. गुड थिंग तो ये है कि मैं म्यूजिक ज्यादा बना रहा हूँ, ज्यादा सीख रहा हूँ, और फैमिली को ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, और मेंटल हेल्थ पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, नींद अच्छी आ रही है। बैड थिंग तो एक ही है, अकाउंट पे पैसे नहीं आ रहे आजकल। ओके, काफी लाइव शोज हो रहे बट वो फ्री वाले हैं काइंड ऑफ। नहीं, वो मैंने तो किए, मैंने सिर्फ 2 ही किया, आई थिंक एक बॉलीवुड किया और एक खुद के लिए किया, और एक अक्स दुबई जो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो वो था। बट अभी पेड वाले लाइव हो रहे हैं, बट भाई वो जो महीने में कमा रहा था वो नहीं आ रहा ना अभी, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, तो वो पता नहीं अब कब स्टार्ट होगा। दिवांश आपको पूछ रहा है कि आप औरंगाबाद कभी आओगे?
औरंगाबाद में क्लब नहीं है, वैसे ही बुलाओ खाने वाने पे, अभी तो फ्री है, जब भी बोलो ड्राइव करके निकल जाएंगे, आ जाएंगे आपके पास। अच्छा, काम्या, ये लॉकडाउन जो है चल रहा है, हाय काम्या, हाउ आर जम्बो यू? जम्बो लेमन, कुनाली दोदिया. Kunali, yeah, she's from Nairobi. Jambo is hello. Oh, great. DJ Kamya, lemon. Acha, DJ Harsh Magnani is asking you, when are we meeting Lemon sir? Do you know him? वो next time when I'm in Pimpri, yeah, he's a very dear kid. बहुत वो कभी पैदल भी मिलने आ जाता है, जहाँ पर भी मैं हूँ वहाँ पर पैदल भी आ अच्छा. जाता हूँ. So he loves me so much and I love him back. तो जब भी मिलूंगा तब आ जाऊंगा, पिंपरी आऊंगा तो मिलेंगे. Okay, so I hope guys, everybody, all enjoyed. Many questions were answered over here, and I hope Lemon sir also enjoyed too. It was a short session, but it was a wonderful session, I guess, sir. Thank you. जाते जाते सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहूंगा सर. ऐसा कोई करंट आपका कोई रिमिक्स है जो आप रिलीज करने वाले हो, उसका नाम आप रिवील करना चाहोगे? खैरियत कर रहा हूँ मैं, और आई थिंक थोड़ी देर और ठहर जा में भी काम चल रहा है मेरा. अच्छा. और लिखे जो खत तुझे बाय सनम, वो भी अच्छा बन गया है, ऑलरेडी डन. हाँ. ओके, दैट्स अ गुड सॉन्ग सर. खैरियत एक्चुअली सुशांत का गाना है, एंड हाँ, उसी के लिए बना है, एक्चुअली उसकी मेमोरी में ही बनाया हुआ है. Oh, lovely dedication, sir. Thank you so much, sir, for for giving us time, and a big thank you from Acme Creations for taking out the time and joining us live. And Hello, still, there are many messages out here. My God, he's so down to earth person. Thank you, Mayu. And we have Waggy sir also. हाँ. एक गाना होना चाहिए. अरे एसडी भाई के पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं बहुत कुछ कर लेता हूँ उनके साथ. बहुत बिजी आदमी है वो. शादी के बाद मतलब गायब हो गया वो, एकदम गायब. हर्ष मंगनानी फिर से लेकर यहाँ पे. प्लीज से हाई टू विनी. हाय विनी. शी इज हियर. यस, हाय विनी. चले, आई थिंक मेरा बैटरी भी कम है. एंड anyway sir, thank you so much. I hope you enjoyed, and thank you so much. Bye bye. Thank you. Okay, so that was DJ Lemon, guys. It was a short session, but a very entertaining and a wonderful session with DJ Lemon. He is one of the best DJs in India, and he has been to many countries all over the world, and he has performed in many cities also. So that was DJ Lemon, guys. I hope you guys enjoyed. Thank you so much for watching us, and I hope you are staying at home, staying safe, taking all the care that is needed. Thank you so much, guys. Let's meet you next time. This is Anchor Dheeraj signing off. Bye bye.